everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So friends, if you are also shortlisted for the GIC, that is General Insurance Corporation, this video is helping you out for your interview preparation. As I'm going to provide you all the detailed information related to GIC, insurance sector of India, and all the things we are going to be covered in this particular video, right? You can download this documentation from your Yopedia panel, can read it out and can practice this basically by attending different HR sessions and mock sessions with Yopedia, right? So yes, GIC में बहुत सारे different post हैं, that is journalist, legal, finance, HR and even the engineering posts are also there. You are from any other post basically, irrespective of, you need to be prepared this particular information. So let's get start about GIC. So yes, General Insurance Corporation, अब ये जो General Insurance business है इंडिया का, that was nationalized by the Act 1972, that is GIBNA, General Insurance Business Nationalization Act. ठीक है, so ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले. उसके बाद जो General Insurance Corporation है वो like it has been formed under the section 9 part 1 of GIBNA. ठीक है, it has been incorporated on 22nd November 1972 under the Companies Act 1956 as a private company limited by shares. Okay, this you need to be aware about. अगर आपको एक question पूछा जाता है इंटरव्यू में कि what do you know about GIC, this will be the exact answer, not more than this, not less than this. ठीक है, इसके बाद इन जनरिक इंफॉर्मेशन है जीआईसी के बारे में. अब ये बेसिकली आपका आता है, कुछ सब्सिडरीज हैं इसकी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफ दिस. देन इट कम्स टू दैट नेक्स्ट लैंडमार्क हैपेंड ऑन 19 अप्रैल 2000. ठीक है, जिसमें कि व्हेन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 इट बेसिकली केम इनटू फोर्स. ठीक है, ये आपको इस एक्ट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, राइट. देन ईयर वाइज डेवलपमेंट यहाँ पे गिवन है. 1972 में क्या हुआ था, तो सबसे पहले जो जनरल इंश्योरेंस है वो एक्ट के अंडर डेवलप हुआ था. ठीक है, देन 1973 में इट जीआईसी कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन जनवरी 1, राइट. देन 2000 में जीआईसी वाज रिस्ट्रक्चर्ड, इट वाज डेजिग्नेटेड एज द इंडियन री इंश्योरर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. 2002 में following the 9/11 Act, of course, and the subsequent withdrawal of international reinsurance, so इसका basically forming the Indian market terrorism and risk assurance pool expansion हुआ था. and yes, so इसका year wise highlight है, इसको please जरूर check कर लीजिएगा. till 2024 what is the things. ठीक है, talking about the management, see this Shri Ramaswamy Narayan is the director. ठीक है, इज अ चेयरमैन, बेसिकली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीआईसी, राइट. इनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ये प्लीज जरूर पढ़ लीजिए कि किस इंजीनियरिंग से हैं, ये किस फील्ड से हैं व्हेन ही हैड जॉइंड द जीआईसी. देन इट कम्स टू सी देयर इज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. डॉक्टर एमपी तंगरेला इज द एडिशनल सेक्रेटरी. मिस ए मखेली इज द एमडी एंड सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. सो यस, दिस इज द मैनेजमेंट टीम ऑफ जीआईसी. Headquarters in the Mumbai, Maharashtra, India. Vision, mission and vision. See, बहुत important question है ये कि what is the mission and vision of GIC, General Insurance Company का, like corporation का क्या mission है और क्या vision है. So vision is to be a leading global reinsurance and risk solution provider, and जो mission है वो है आपका basically building long term mutually beneficial relationship with business partners. ठीक है, developing and retaining highly motivated professionals. so this is the mission, मतलब जो current objective है. core values, ये भी एक बहुत important question पूछा जाता है कि आपको GIC की core values के बारे में क्या पता है. that is trust and mutual respect, they used to be go, professional excellence, commitment and responsive services. these are the core values of GIC Re. regulatory framework, ठीक है, जो functioning है GIC की वो इन रेगुलेशंस और एक्ट्स के अकॉर्डिंग है. मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, IRDAI ऑब्लिगेटरी सेशंस गैजेट, कंपनीज एक्ट 2013, इंश्योरेंस एक्ट 1938, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 एंड अगेन अमेंडमेंट एक्ट 2002, that is GIB nationalization only. And
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इनके अंडर GIC की रेगुलेशंस हैं. Talking about product and services, that is something very important. So yes, reinsurance solutions है इसमें. Treaty and facultative reinsurance to insurance companies. Treaty reinsurance है, then facultative reinsurance है. Key reinsurance lines of business आती हैं fire and property reinsurance में, marine reinsurance में, motor reinsurance में, health and life reinsurance में, agriculture and wealth risk reinsurance. ठीक है. इंजीनियरिंग एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस आ जाती हैं. कवर्स लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट आ जाता है, इंडस्ट्रियल रिस्क आ जाता है. ठीक है. इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क CAR, इरेक्शन ऑल रिस्क EER एंड मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस. ठीक है. दिस कम अंडर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. उसके बाद स्पेशलाइज्ड रिस्क सोल्यूशन आता है, साइबर रिस्क इंश्योरेंस, टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंश्योरेंस, एविएशन एंड स्पेस इंश्योरेंस एंड पूल मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग में आ जाता है. इंडियन मार्केट टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल. ठीक है. इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, ये आपको इन डिफरेंट रेस्पेक्टिव फील्ड में इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. इंटरनेशनल में आ जाता है, बेसिकली इट ऑपरेट्स इन वेरियस इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूडिंग अलॉट्स ऑफ लंदन, दुबई, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका. क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरेंस सोल्यूशंस भी आता है इसमें. रेट्रोसेशन सर्विसेज में आता है, purchases retrocession reinsurance for reinsurers insurance to manage its own exposure. ठीक है. catastrophic bonds and alternative risk transfer आ जाता है इसमें. right, then it comes to this is that is about the main insurances or like insurances of that. मेन कॉम्पिटिटर कौन कौन है GIC के, आपको कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए. कई बार कैंडिडेट्स आंसर करते हैं कि मैम अभी नाम तो नहीं पता बेसिकली, या कई बार लाइक इनवैलिड आंसर करते हैं कि मैम ये इसका कॉम्पिटिटर, जबकि वो एक्चुअल में होता ही नहीं है. आपको कॉम्पिटिटर का मतलब ये पता होना चाहिए कि करंटली उसको कौन कंपीट कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी. इंश्योरेंस जो सेक्टर है दैट इज टोटली अ मार्केटिंग काइंड ऑफ सेक्टर. ठीक है. सो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होना चाहिए. उसके बाद आप उसको कॉम्पिटिटिव किस स्केल पे कर रहे हैं मेजर, वो आपको पता होना चाहिए. सो इसमें आ जाता है बेसिकली फॉरेन री इंश्योरेंस विद ब्रांचेज इन इंडिया, Munich Re Germany, Swiss Re Switzerland, Hannover Re Germany, Scorsese France, Elsoff London UK and Indian General Insurance Companies in direct competition. ठीक है. ये तो देखो आ जाता है आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वो ग्लोबली प्रेजेंट है, ये उसके वो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं. देन आ जाता है इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में, ये इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन है. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, like United India Insurance Corporation Limited, National Insurance Corporation Limited and the Oriental Insurance Corporation Limited. So these are the main competitors in India as well. आप इनमें से कोई भी लर्न कर लेना, बट येस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत. यू नीड टू बी हैव की हाईलाइट ऑफ रिलेटेड टू दिस ग्रोस प्रीमियम इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, लाइक दैट. ठीक है. रिवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, या प्लीज रीड कर लीजिएगा एक बारी. देन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड कन्वर्ज्ड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो इसके अंडर आता है. बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर के अंडर आता है. अकॉर्डिंगली ये फंडेड स्कीम्स कैसे इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कर रही हैं, ये जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. ठीक है. टॉकिंग अबाउट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो 18 Feb 2016 पे लॉन्च हुई थी. ठीक है. जो एक इज एन इंश्योरेंस सर्विस फॉर फार्मर्स फॉर देयर यील्ड्स. ठीक है. देन इट वाज फॉर्मुलेटेड लाइन विद द वन नेशन वन स्कीम. राइट. अब इसका जो एम है टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर्स, एंड जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है कवर अगेंस्ट फेलियर ऑफ द क्रॉप, thus helping in stabilizing the income of the farmers. सेकेंड आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि बेसिकली 18 से 70 साल तक के जो एज के लोग हैं उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए बेसिकली, एंड एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹20. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एक्सटेम्प्टेड ऑन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, इसमें कोई GSTs नहीं है. इन केस ऑफ डेथ ऑफ फुल डिसेबिलिटी, जो पेमेंट है टू द नॉमिनी विल बी ₹2 लाख. इन द केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी इट वुड बी ₹1 लाख. ठीक है. अभी जो साइबर सिक्योरिटी है वो कैसे यूज हो सकती है इंश्योरेंस कंपनी में.
It plays very crucial role to sensitive customer data, protection against cyber attacks and ensuring overall integrity. ठीक है, प्रोटेक्शन कस्टमर डेटा आ जाता है, सेफगार्डिंग इंश्योरेंस ऑपरेशंस, प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स, एनहांसिंग रिस्क मैनेजमेंट. बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी है या कोई भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, दिस टाइम वी आर यूजिंग डिजिटलाइजेशन थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो हमें उस चीज के लिए वी नीड टू बी प्रिपेयर कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये चैलेंजेस क्या क्या है, ये आप बोल सकते हो. अगर वो डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी से पूछे तो दीज आर द मेन थिंग्स. Protecting intellectual property, maintaining regulatory compliance and building customers trust, enabling digital transformation, informing underwriting decisions, supporting cyber insurance offerings, right? So ये आपको पता होना चाहिए. और जो ऊपर हमने डिस्कस किया that was the government or the public competitor like that. Now private sector insurance companies कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए, because if you are from that field and if you are coming in that field, तो आप उसको उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, बिरला सन लाइफ, टाटा AIA, आदित्य बिरला कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस, IDBI लाइफ इंश्योरेंस. सो यस, दीज आर द प्राइवेट कंपनीज. जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी हैं? ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, HDFC अर्गो, रिलायंस जनरल, बजाज अलायंस, ठीक है, देन ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस एंड द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया, LIC. जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में आ जाती है NIC, NIA, OIC एंड UIIC. व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम क्या है? प्रीमियम क्या होता है? बेसिकली इंश्योरेंस के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, प्रीमियम जो है इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पॉलिसी होल्डर पेज टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर इंश्योरेंस कवरेज. ठीक है. पर्पस क्या है प्रीमियम का? बेसिकली इट्स फॉर प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर इंश्योरेंस कंपनीज एंड दीज फंड्स आर यूज्ड टू पे इंश्योरेंस क्लेम्स, cover administrative cost and maintain a reserve for future claims. ठीक है. प्रीमियम्स को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? टाइप ऑफ इंश्योरेंस कौन सी अपनी ली है, ठीक है, उस तरीके से, तो उसी तरीके का आपका क्लेम भी होगा. कवरेज अमाउंट कितना है, दैट ऑल्सो अफेक्टिंग. पॉलिसी होल्डर रिस्क प्रोफाइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जियोग्राफिक लोकेशन. अब ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस दैट यू नीड टू बी अवेयर. आप किसी भी और फील्ड से हैं और आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, कि मतलब जर्नलिस्ट, लीगल, फाइनेंस और किसी भी पोस्ट के लिए GIC में, या फिर आप सेम बैकग्राउंड से हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए जर्नल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड. पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड, इंश्योरर क्या होता है, प्रीमियम क्या है, कवरेज क्या है, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस, बेनिफिट, एक्चुअली अंडरराइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरराइटिंग का कंसेप्ट. एन इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय हु एक्सेस द रिस्क ऑफ अ पोटेंशियल पॉलिसी होल्डर एंड डिटरमाइंस वेदर टू एक्सेप्ट द रिस्क इज अंडरराइटर. एजेंट कौन है? अ पर्सन हु सेल्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. ब्रोकर कौन है? क्लेम क्या होता है? अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ लॉस कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी. सबोगेशन. ठीक है. ये आपके जर्नल टर्म्स हैं, ये आप जरूर रीड कर लीजिएगा. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं GIC. बीइंग लाइक फ्रॉम द फाइनेंशियल लाइक डिपार्टमेंट, लीगल, लॉ, HR, जर्नलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज, आई कैन से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन GIC? ठीक है. उसमें आपका आ जाता है बेसिकली इट्स एस्टैब्लिशिंग रेपुटेशन एंड ब्रांड रिकॉग्निशन. Diverse career opportunities are there, learning and development environment is also there, competitive compensation and benefits are there, and contribution to society. जो GIC है that allows you to make a positive impact on society by providing essential insurance services. ठीक है. Dynamic work environment, contribution to the insurance industry that is directly related to the financial inclusion of country. ठीक है. उसके बाद आ जाता है स्कोप ऑफ ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया. ये जो एक जेनरिक क्वेश्चन है और करंट भी है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका क्या स्कोप है इन फ्यूचर. ठीक है. हाउ इट इज गोइंग, वेयर इट इज गोइंग, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. दैट इज समथिंग. इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन,
rising disposable incomes, expanding middle class, right? Then government initiatives are also helping them out. बहुत सारी अभी हमने schemes discuss की इंश्योरेंस सेक्टर में. Digitalization, untapped potential, product innovation is there, rural expansion is there. Yes, बहुत सारी इंश्योरेंस schemes हैं, इंश्योरेंस policies हैं जो चीज़ों को मोटिवेट कर रही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप्स. ठीक है. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट GIC. ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, राइट. सो यस, GIC में प्राइवेट कंपनीज कौन सी हैं, बेसिकली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी हैं, गवर्नमेंट कौन सी हैं, GIC क्या है, history of GIC, management team of GIC, we have discussed all the important things. ठीक है. You need to be aware about the global present of that, you need to be aware about the main competitors and all the things are there. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ जनरल क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस किए हैं, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज भी हैं. सो प्लीज मेक श्योर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड कर लीजिए योरपीडिया पैनल से, इसको रीड कीजिए एंड इसको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए विद योरपीडिया मेंटर्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक.